Hello and Namaskar traders. It's good to be back with another episode of Next Talks. जैसे आपको पता है that with Next Talks I always try to introduce a simple, just like any one of us, a person who also has tried his intelligence, his capital, his efforts to make a sustainable passive source of income through investing and trading. And it gives me a lot of confidence, conviction, when I, invite any of my existing or past mentees, because उनको मैं closely काफ़ी सालों तक नर्चर किया है या फिर उनके साथ डिस्कस किया और उनको मैं जानता हूँ. सो इट गिव्स मी दैट कन्विक्शन टू शेयर हिज स्टोरी विथ यू. And today I am going to share one of my existing mentee with Next, Mr. Aniket, and a very interesting story. मैं हम लोग उनके ही मुंह से सुनेंगे. And he will have all our blessings and wishes because he's taking a wonderful decision in his life this week. But वो हम लोग सीधा उन्हीं से सुनेंगे. So Aniket, good to have you. Thank you so much, sir. Thank you so much for inviting me. Thank you so much for giving me this opportunity. I always thought that Next has given me so much. There has to be some way so that I can give back a little Great. to the entire community and to the aspiring traders. बिल्कुल So, बिल्कुल. yeah, going back to my journey. So, नहीं, I have जर्नी done से my. पहले अनिकेत, आई वुड रिक्वेस्ट कि इफ़ यू कैन शेयर अ लिटिल बिट ऑफ बैकग्राउंड ऑफ योर सेल्फ, जिससे कि हम लोग सब आपके साथ अच्छी तरह से कनेक्ट कर पाए. आई रिमेंबर आप मेरे साथ बॉम्बे एयरपोर्ट के बाहर मिले थे द लास्ट टाइम आई वॉज इन द सिटी, एंड यू आर फ्रॉम द सिटी ऑफ भुवनेश्वर, करेक्ट? Yes, yes. तो So, I am from Orissa. भुवनेश्वर से I am from बॉम्बे, एंड Orissa. थोड़ा आपके बारे में बताइए. So, yeah, so I did my MBA back in 2009. I passed out in 2011, and I got placed with a multinational bank in Mumbai. So that's how I started my journey. So in 2011, May is when I came to Mumbai with a lot of aspirations, with a lot of dreams in my eyes, because Mumbai has always been that it's a dream city. It's a city that fulfill Always, your always. dreams. What was your age? Yeah. 24, 25. Okay. Yeah, yeah. And then I joined this MNC company where I worked for close to 3 years, and then I made a switch, and I joined another Swiss-based company where I worked for almost close to 10 years. So overall, Okay. I have worked with uh, two multinational banks over a span of last 14 years. So yeah, that's. So 14 years बॉम्बे जैसे शहर में, मुंबई जैसे शहर में, and that too MNC. So of course these are, I will not like to use the word stress that much, but कोई भी अगर मुंबई जैसे शहर में MNCs में नौकरी किया है तो उसको पता है that life's not easy. It's hard, but it's also it gives you that opportunity which no other city gives you. So you must have had the great sides, the positives, as well as the city takes a lot from you also. देता भी है वो शहर, लेता भी आपसे बहुत कुछ है. So Yes. ये जो I when we met and we were talking, you mentioned about that comfort, that corporate comfort versus that inner emptiness, right? You had 14 years of corporate success, that too MNCs, that too in the city of Bombay, and you said that there was something missing internally. इसके बारे में थोड़ा सा बताइए. Which, when did you start thinking कि नहीं, I'm going to step aside or step out and start something on my own? तो ये जो thought process था उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए. I mean, on paper, everything was right. Like you pointed out, 14 years, global exposure, growth था, recognition था. Globally, बहुत सारे talented people के साथ I got an opportunity to work with. There was a lot of learning as well. But at some point, after
I mean, after spending around 12 or 13 years, I realized that I got into that autopilot mode कि ठीक है कर रहा हूँ लेकिन पैसे के लिए ही कर रहा हूँ, पैसे से आगे क्या है. So again, the COVID time, जब COVID आया, COVID hit us, we all took a pause, and that's where I started to question all that I have done so far. कि ठीक है, मतलब everybody was in that fear कि कल हो है या नहीं है क्या पता, मतलब कल अगर खत्म हो गया तो क्या करना है. So at that point I took a pause and asked myself, ठीक है पैसा मिल रहा है, recognition है, सब कुछ अच्छा है, सब everything is fine, but am I really happy? क्या मैं खुश हूँ अंदर से? Then the question came कि ठीक है ये तो रैट रेस है, चल रहा है, पैसे के लिए चल रहा है, एवरीथिंग इज फाइन, पर वो पर्पस कहीं ना कहीं वो मिसिंग लग रहा था. दैट पर्पस, द पर्पस दैट aligns with my value, which I imbibed at that point in time, was missing somehow. So that got me into that questioning mode कि ठीक है, okay, फिर क्या, next is Beautiful. what's next. ब्यूटीफुल. यहाँ पे मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा दैट मैं खुद मुंबई में 10 साल नौकरी कर चुका हूँ. 2011 आप मुंबई आए, 2013 मैंने मुंबई छोड़ा, बट उसके पहले आई हैव वर्क देयर. और जहाँ पे भी मुझे ये मौका मिलता है, वेर एवर आई गेट दिस अपॉर्चुनिटी, आई ऑलवेज से दैट प्रोफेशनली वॉट एवर आई एम टुडे, 100% क्रेडिट आई गिव टू दैट सिटी. बट आई वुड लाइक टू आस्क यू, ये जो आपका थॉट प्रोसेस है कि इसके आगे क्या, बिकॉज इन अ सिटी when someone is working MNCs or not MNCs, you're essentially in a race to make more and go up the ladder as much as possible, shift from one ladder to the other so that you make more money and more comfort, and it's a endless game, but crores of people are playing that endless game every single day for decades and their entire life. बहुत कम लोग probably किसी शाम को आराम से बैठ के ये खुद को पूछते हैं कि why am I doing what am I doing, what is the purpose of this. So these kind of, let's say, quote unquote spiritual thoughts या philosophical thoughts about your life, क्या ये आपके अंदर पहले से ही था, मतलब in your past also did you find yourself asking those kind of questions, या फिर this was the first time अनिकेत खुद का लाइफ पर्पस के बारे में सोच रहा था? लाइक यू सेड कि मुंबई आपको इतना भगाता है कि वो आपको रुकने का टाइम ही नहीं देता है कि आप रुक के सोचो कि आप क्यों कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो. और वो थॉट इवेंचुअली एक पॉइंट में आता है, लेकिन बहुत लोग रियलाइज नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको भागना होता है, उनको कहीं Yes. ना कहीं पहुंचना होता है. और मुंबई में इफ यू लुक अराउंड, एवरीबडी इज रनिंग अराउंड, कोई रुक के सोचता नहीं है, विच इज अ वेरी गुड थिंग अबाउट दिस सिटी. But like I Yes. said, COVID आया, COVID में my so that's where my wife has been a very big contributor in my decision. So 2020, 2021, so my wife was working with a public sector bank. Okay. तो but her intention was always कि नहीं, मुझे ये बैंक अच्छा नहीं लग रहा है. She struggled to get into that job क्योंकि competitive exams देना पड़ा, and she had to go through a lot. और उसके पिताजी का भी सपना था, बट देन अगेन सी सेड कि ठीक है मेरे पिताजी का सपना था, बट मेरे पिताजी का सपना क्या था कि एट द एंड ऑफ द डे आई शुड बी हैप्पी. सो इज दिस समथिंग व्हिच इज मेकिंग मी हैप्पी? माय वाइफ आस्क्ड दैट क्वेश्चन टू हरसेल्फ. सो क्लियरली शी गॉट एन आंसर कि नो. तब तक मैं अपने धुन में था कि ठीक है, ओके ठीक है, मेरा तो चल रहा है, ओके देखते हैं. फिर देन वी बोथ सैट टुगेदर एंड वी थॉट कि ठीक है, इफ यू आर नॉट हैप्पी विथ योर जॉब, आई वाज ऑलवेज हैप्पी एंड कंटेंटेड विथ माय जॉब, कि Okay. इफ यू आर नॉट हैप्पी विद दैट विथ योर जॉब तो क्या करना है आगे चल के. देन शी स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग एंड देन शी सेड कि ठीक है, 2021 केम, 2021 एंड 2022 शी सेड कि ठीक है, आई एम लिविंग माय जॉब. दैट्स वेयर वी डिसाइडेड कि ओके ठीक है, यू लिव योर जॉब, आई विल सपोर्ट यू, and then after a few years down the line, if things work out for you, then I will take that step and we both in the process will support each other. Great. So वो जो कीड़ा दिमाग में आया कि पर्पस सोचना, वो कहीं ना कहीं मेरे वाइफ ने डाला मेरे Oh, दिमाग that's में. nice. That's good. That's and very and nice. and there is another story, there is Yes. another additional story to it, which is again related to a mentor which I had, so which I can still have, so we'll cover that. I'll Okay. हाँ, tell more ये about बारे it. में Yeah. बताइए. I was about to ask you because you have mentioned about your
वाइफ्स रोल जो अभी आपने शेयर किया हम लोग के साथ, एंड Yeah, देयर yeah, इज ऑल्सो अ रोल ऑफ अ मेंटर, तो इनके बारे में भी थोड़ा सा बताइए. sure. So again, just to end that conversation regarding my wife, so हम लोग को पहले से ही travel, we used to travel, we love to travel a lot. We both of us, we love to travel a lot. We were kind of nature loving people. हम्म. शोर शराबा ठीक है, पर हमें नेचर के पास जाना अच्छा लगता था, नेचर हम्म. के साथ कनेक्टेड रहना अच्छा लगता था. सो हम्म. ओवरऑल सब कुछ सोच के देन माय वाइफ टुक दैट स्टेप, एंड देन या हम्म. थिंग्स यहाँ पे मैं हैपेंड एक विथ छोटा माय सा डिटो वाइफ. लूंगा. अनिकेत, your wife, you came to Bombay 2011. When did you get married, and was this an arranged marriage or a love marriage, and how long did you know your wife? Because ये जो या आपके दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है, this is really a strong one, and this is your probably strength. So I would like to know that, does the root go really deep, or was it someone you met recently? या no, the root goes really deep, because we were kind of childhood sweethearts. So since I last guessed right. 15 15 years we dated, and then we Okay. got married in No wonder. So 2017. she knows you in and out. Yes, So she that's why knows the me better than I know myself, so yeah. always, always, always. Yeah, So that's why the degree of understanding is that strong. that's So that's she right. left her job. Yes, so 2011 I moved to Mumbai. Mhm. 2018 is when she moved to Mumbai, and Okay. 2020 she decided almost that she's going to quit her job. And when did you And marry? then 2021, 2017. 2017 you married. Okay. Yeah, Okay. yeah. Right. Yeah, so I guessed right. Okay, there must be some deeper connection, and the relationship has to be a really, not a new one. Good, great. But you mentioned about your mentor also. So please, इनके बारे में बताइए, his or her role in your life and life decisions. Sure. So my mentor, she was my first mentor, and she was my manager at work. And she mentored me almost for close to 11 years, and still she's continuing to do that. I'm really grateful to her, because Okay. the professional person I evolved into was a lot due to her contribution. Great. She was more of personally invested in me. She really took care of me. She helped me to come up with that mindset of doing something of my own. So that's where I really started to value the right mentorship. I got that idea कि अगर आपको सही mentor मिल गया life में, जिसने खुद सब कुछ किया हुआ है, then your journey becomes easy. And at the same time, you also have a support who can hold your hand and walk along with you, giving you that support and giving you that confidence. You can really do it. You can really make a difference. That's good. So two important women plays a very important Yes. role in your life. Yes. Very nice. Very nice. अब आते हैं सीधा ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट पे. So Sure. fast forward today, I know that you are essentially trading for a living. But for us to understand you better, trading ka kira, investment ka kira, you were with banks, MNCs, so I can make an assumption कि investment, stock market, SIPs, ये सब आपको naturally कुछ हद तक या काफ़ी हद तक you knew about it. But एनी इंस्टेंस कि ये एग्जैक्टली ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग या ट्रेड करना है, एंड ये कहाँ से चालू हुआ, ये थोड़ा सा टेक अस बैक एंड वॉक अस थ्रू, व्हेन डिड दिस हैपन? Sure. So ट्रेडिंग स्टॉक्स इक्विटीज उसके बारे में, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ही फिनेंस से था, तो मुझे थोड़ा बहुत पता था. लेकिन कंप्लायंस राइट. रेस्ट्रिक्शंस की वजह से हम लोग ज्यादा कुछ ट्रेडिंग वगैरह में नहीं कर सकते थे. इट वाज ऑलवेज लिमिटेड टू इन्वेस्टिंग in करेक्ट. mutual funds through SIP route and all. But I used to track the markets. But the thing, जब जब जैसे I was telling you कि जैसे ही वो कीड़ा आया दिमाग में कि जॉब के अलावा और कुछ करना है, then I started to connecting it with कि अभी मेरा क्या एक्सपीरियंस है, अभी मेरा क्या एक्सपर्टीज है, वो एक्सपर्टीज को मैं यूज करके कुछ कर सकता हूँ क्या इन द एरियाज विच रियली इंटरेस्ट्स मी. करेक्ट. तो वहां से क्या हुआ, बिकॉज आई हैव अ कैरियर इन नॉन फाइनेंशियल रिस्क. इन नॉन फाइनेंशियल रिस्क वी यूज टू डील विद अ लॉट ऑफ डेटा. So data analytics, data reporting, data management, we used to do a lot of those things. तो मेरा साइकी वैसे ही बन गया था, मेरा जो न्यूरल पाथवेज ही वैसा बन गया था कि
कुछ होने से पहले ही मुझे वो आइडेंटिफाई करना था, because that's where Okay. the entire processes that we worked on was developed in such a way that we were there to just mitigate the risk, कि Right. anticipate, like I said, कि like basically जो breakout होने से पहले we should be in a position to anticipate कि अच्छा चलो breakout होने वाला है. So that thought Yeah. process came from my prior experience, जहाँ पे we used to develop processes, controls, जहाँ पे हम लोग को था कि okay, ये कुछ होने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ये हो सकता है, probability है. So Right. ये सब when I tied back everything with each other, I thought कि I was pretty convinced कि चलो trading ही करना है. पर कैसे And करना है, क्या करना है, then the next journey started, when जो was कि this? अलग ही struggle था. 2022, 23 कब था ये? 22, 22, 23, yes, 22, 23. 22. Okay. Okay. So with that thought कि you used your past background जहाँ पे भी आपने कैसे भी काम किया जो भी काम किया है उसको utilize करके then you decided let's build a career surrounding trading, investing, both of them, etc. Now comes, but you were, see, when we used to work, you used to work compliance के कारण you can never trade. And until and unless you trade, you don't become a trader. Until and unless you invest well, Exactly. you don't become an investor. Hmm. So, so tell us a little bit about your learning process. I think आपने ये भी बताया that aha moment आपका discovering the pullback trading. So आपका learning True. process के बारे में थोड़ा सा बताइए. And these aha moments. One aha moment is when you realize that यार सब लोग तो breakout करते हैं, but there are other ways to trade also. So once you realize कि मेरा next plan होगा to become a self-sufficient trader, investor, what was the next step you took? Must be towards learning and joining some courses, because Yes. तब तो trader से ज़्यादा mentors थे. Yes, क्योंकि 2020 कोविड क्रैश के बाद जब रिकवर होना स्टार्ट हुआ तो बहुत सारे सोशल मीडिया पे ये काफी वायरल हो गया कि ट्रेडिंग टीच द मेंटर्स, नॉट द मेंटर्स, द पीपल हु एक्चुअली परस्यूड ट्रेडिंग, टीचिंग ट्रेडिंग एज अ कैरियर. तो तब चैलेंज मेरे लिए ये था कि राइट मेंटर या राइट टीचर कहाँ से मिले. वो तो मुझे बहुत क्लियरली पता था कि मुझे एक मेंटर चाहिए, सही मेंटर चाहिए, लेकिन वो मेंटर की तलाश में मुझे ये नहीं पता था कि मुझे घाट घाट का पानी पीना पड़ेगा. लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप कहीं पे भी जाओ, दिस इज नथिंग अगेंस्ट द मेंटर्स और द टीचर्स आउट देयर, मोस्ट ऑफ द पीपल रियली टॉक अबाउट द ब्रेकआउट ट्रेडिंग, कि ब्रेकआउट हो गया उसके बाद आप आइडेंटिफाई कर रहे हो और आइडेंटिफाई करके ट्रेड पे चढ़ रहे हो. तो वो चीज मुझे समझ में नहीं आया. मुझे हमेशा वो चीज खटकता था कि अरे ब्रेकआउट होने के बाद क्यों हम लोग चढ़ रहे हैं, ब्रेकआउट होने से पहले तो कुछ होना चाहिए, राइट. तो आई ये थॉट के पीछे ये थॉट मेरे अंदर रख के आई स्टिल कंटिन्यू टू सर्च फॉर अ मेंटर whom I can resemble to, जिसको देख के या जिसको सुन के मुझे पता चले कि अच्छा मेरे लाइंस पे भी कोई सोच रहा है. Then suddenly it happened in 2024. I stumbled. It is again due to God's grace. I stumbled upon your YouTube channel. पता नहीं कहाँ से क्या आया, कैसे आया. I started watching your YouTube videos starting 2024. Okay. At that time, we were associated with a different organization. So then you were the only reason जिसकी वजह से मैंने वो एंटायर प्रोग्राम किया एक साल का. Okay. क्योंकि मुझे वो आपका वीडियोस देख के थोड़ा बहुत पता चल गया था अबाउट पुल बैक ट्रेडिंग, कि ऐसे कुछ हो रहा है, ऐसे कुछ सेटअप्स हैं, ऐसा कुछ सर कर रहे हैं जो कि ब्रेकआउट से पहले ही वो मूव को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं. तो वहीं पे वो इंस्टेंट कनेक्ट हो गया. देन मैंने वो प्रोग्राम पे एनरोल किया. आई डिड दिस एंटायर कोर्स. इट वाज ऑल वेटिंग. सारे मॉड्यूल्स करने के बाद आप लास्ट में आते हो, बिकॉज द बेस्ट इज ऑलवेज सेव्ड फॉर द लास्ट. तो फाइनली 2024 खत्म हुआ. 2024 खत्म हुआ. 2025 में इज व्हेन वी स्टार्टेड द बैच. योर बैच स्टार्टेड. So, your learning about charts and markets essentially started from that 1 year program, or had you done any previous seminars, webinars? यूट्यूब वीडियोस, हाँ, वो तो काफी कुछ कर चुका था. वेबिनार्स कर चुके थे, थोड़े बहुत बुक्स पढ़ चुके थे. But YouTube was your main वीडियोस source. रेगुलरली देखता था. YouTube was my main source. Main source.
And of course, that 1 year program was excellent. It was very well यस 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 यस, structured. क्योंकि वो फाउंडेशन से स्टार्ट होता है ना, Yeah, सो देन basics देन से आई start फेल्ट होता कि है. यूट्यूब में प्रॉब्लम ये होता है कि देर आर लॉट ऑफ लर्निंग्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब बट इट इज क्वाइट अनस्ट्रक्चर्ड. तो मुझे वो स्ट्रक्चर चाहिए था कहीं ना कहीं. दैट स्ट्रक्चर इज मिसिंग इन यूट्यूब, इज That's व्हाट okay. आई फील. YouTube is just a या platform या for या, video, so it's not डेफिनेटली supposed to डेफिनेटली, या give you या the structure. या Great, या. great. So learning के लिए फिर आपको बहुत ज़्यादा घाट घाट का पानी नहीं पीना पड़ा, because I have interacted with people who have gone through years of going round and not being able to stumble upon the strategy or the concept which will kind of sink. You'll resonate with it. वो जम जाता है. बट फ्रॉम दैट आई पॉइंट मीन ऑफ व्यू आपको थैंकफुली ज़्यादा वक्त और ज़्यादा घाट में नहीं जाना पड़ा. करना पड़ा, बट वो इंडिकेटर्स टू इंडिकेटर्स, वो ये इंडिकेटर हम्म देख लिया हम्म तो हम्म एक्साइटमेंट आ गया, वो इंडिकेटर देख लिया, वो काफी कुछ थोड़ा बहुत करना पड़ा, लेकिन हम्म, एट द एंड ऑफ द डे वो सेटिस्फेक्शन ही नहीं लग रहा था कि चलो ठीक है, सब ईएमएस देख रहे हैं, सब कुछ सब देख रहे हैं, लेकिन सब कुछ तो ब्रेकआउट ही ट्रेड कर रहे हैं. कोई पैटर्न ट्रेडर को देख रहा था, वो पैटर्न ट्रेडर भी करेक्ट. ब्रेकआउट ट्रेड करता है, कोई कोई एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फॉलो करता है, कोई सिंपल मूविंग एवरेज फॉलो करता है. एट द एंड ऑफ द डे घुमा फिरा के सारे ब्रेकआउट ही ट्रेड कर रहे करेक्ट. सो दिस इज 2024, 2024, 2025. हैं. करेक्ट. यस 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 अब यस. थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड होके फिर से वापस जाएंगे. फास्ट फॉरवर्ड टुडे, आज के तारीख में यू आर ट्रेडिंग फुल टाइम Yes, I'm trading full time. एंड यू ट्रेड कैश मार्केट और फ्यूचर्स मार्केट और ऑप्शंस और ऑल. थोड़ा सा अपने ट्रेडिंग के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में बताइए. As of now, I trade only futures. लेकिन ओके. जब मैंने स्टार्ट किया तो क्योंकि वो मेरा मेरा बैकग्राउंड रिस्क से था, तो आई वाज ऑलवेज वेरी क्लियर कि मुझे ज्यादा कैपिटल को जलाना नहीं है. आई हैव टू प्रिजर्व माय कैपिटल एंड रिस्क मैनेजमेंट. मुझे वो चीज करके जाना था. तो देन आई स्टार्टेड लर्निंग योर सेटअप्स. फिर उसको मैं पेपर ट्रेड करता था कैश में. तब तक फ्यूचर्स तो मुझे पहले से ही फ्यूचर्स था, बहुत सुना था मैंने, डबल एज सोर्ड है और पैसा जलता है, हाथ जलता है. मेरे पास वो वैसा कुछ सक्सेसफुल स्टोरीज उतना कुछ सुनने नहीं मिला था. तो आई स्टिक्ड टू कैश फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो नहीं, बस 3-4 महीना, 6 महीना पकड़ लीजिए. जब तक ये मेरा जॉब का जो लास्ट डे खत्म हुआ, कंप्लायंस रिस्ट्रिक्शंस हटा, वो हटने के बाद देन इमीडिएटली आई स्टार्टेड डूइंग कैश. फ्यूचर्स का तब तक मेरे को पता था कि मेरे को आगे चल के करना है, बिकॉज दैट्स व्हाट वी लर्न इन द नेक्स्ट कम्युनिटी, कि आगे चल के करना है. लेकिन स्टार्टिंग में आप जैसे हमेशा बोलते हो कि स्टार्टिंग में इफ यू आर न्यू, इफ यू डोंट हैव रियल एक्सपीरियंस, देन डोंट स्टार्ट विथ फ्यूचर्स. करेक्ट. डू कैश, learn about the markets, learn about the price movements, then धीरे 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 जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, then you can switch to futures. तो कैश में स्टार्ट किया, then कैश में स्टार्ट करते करते over a period of time, then 2025 में I started doing futures. Right. So Feb right now 2025 your exactly, trading to be portfolio is precise. completely futures, Yes, completely futures. and you also have a cash portfolio. Yes, that is for long Okay. term. Okay. So you use futures trading for your kind of, let's say, bread and butter or pocket money, like जो भी money, and Yes. plus side by side you have an investment portfolio also. जब Yes, आप yes. मुझे बॉम्बे एयरपोर्ट के बाहर मिले थे, this was this year Feb, right? कुछ 4-5 महीने पहले. Yes, फेब में ही मिले थे. फेब में ही आपने कॉन्फिडेंस दिया, एंड देन उसके बाद ही मैंने फ्यूचर स्टार्ट किया. उसके बाद हाँ, मुझे याद आ रहा है, बिकॉज तब आप फ्यूचर्स नहीं करते थे, एंड वी हैड डिस्कस्ड नहीं. अबाउट आपका Yes. स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 कैसे हो सकता है. एंड फास्ट फॉरवर्ड अगेन Yeah, टुडे, yeah. मैंने आपको कभी क्लास में ये पूछा नहीं है, बट आज पूछ ही लेता हूँ कि कंपेयर टू दैट डे आउटसाइड द एयरपोर्ट एंड टुडे, आई थिंक योर कॉन्फिडेंस शुड बी मच बेटर. मीन्स कंसिडरिंग योर कंटिन्यूसली Yes. ट्रेडिंग फ्यूचर्स, आई एम 100% श्योर आप में वो कन्विक्शन है. Yes, absolutely, absolutely. Perfect. That Perfect. conversation was a game changer for me, where I still remember you said कि सब छोड़ दो, एक ही सेटअप पे फोकस करो, हाँ. just do 30 trades and then let's have a conversation. अच्छा, चलिए. I told Aniket that you should start with futures trading if you have conviction, confidence, and thorough understanding about the setup. And the important thing is stick to only one setup. One setup, one time frame में 30 एटलीस्ट मिनिमम 30 ट्रेड्स कीजिए. उसके बाद खुद को इवेल्युएट कीजिए वेदर हाउ वाज द फीलिंग, हाउ डिड यू फेयर. एंड मैंने कभी आपको ये पूछा भी नहीं है क्या डिड यू डू द 30 ट्रेड्स एंड ऑल. थोड़ा बताएंगे, डिड यू डू द 30 ट्रेड्स और ड्यूरिंग द 30 ट्रेड्स क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ.
I did more than 30 trades, Sure. क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में कैश किया था। मैंने 30 तो नहीं होगा, ऑलमोस्ट क्लोज टू 15-20 ट्रेड्स मैंने किया था। देन आई जंप्ड इनटू फ्यूचर्स एंड स्टार्टेड टू डूइंग LFDF, जो अपना ले फटाफट दे फटाफट वाला सेट। उसको मैं छोटे टाइम फ्रेम में कर रहा था क्योंकि मेरे को रिस्क मैनेज करना था। True. तो इट वाज मोस्टली 75 मिनट्स, 125 मिनट्स। तो Okay. वहां पे मैंने कंसिस्टेंटली 30 to 35 ट्रेड्स मैंने कंसिस्टेंटली किया, Okay. एंड आई वाज गेटिंग आउट बाय कैप्चरिंग अ स्मॉल मूव। Hmm. एक लॉट पे पकड़ लीजिए 5,000 6,000 का प्रॉफिट देखा, मैं बुक कर लेता था, क्योंकि Okay. मेरा साइकी ऐसा था कि मुझे ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए। Hmm. Hmm. तो दिस इज अ ट्रेड ऑफ, लाइक यू ऑलवेज से, राइट, कि अगर आपको ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो आप प्रॉफिट ज्यादा देख नहीं सकते हो, आप राइड द ट्रेंड तो आप कर ही नहीं सकते हो। Correct. आपको छोटा छोटा मूव पकड़ना है, छोटा छोटा मूव लेके निकलना है। तो मैंने वही फॉलो किया कंसिस्टेंटली, LFDF 3D। देन अगेन वी केम टू दैट कन्वर्सेशन जहां पे क्लास में हम लोग ने बात किया। फिर मुझे वो फील होता था कि चलो 75 मिनट्स 125 मिनट्स में स्ट्रेस तो हो रहा है, बट व्हेन आई स्टार्टेड आई ऑलवेज थॉट कि मुझे ऐसा कुछ चाहिए कि थोड़ा पीसफुल हो, कि मैं अपने लिए टाइम दे पाऊं। अगर मुझे घूमना फिरना अच्छा लगता है तो वो घूमने फिरने के लिए टाइम मैं निकाल पाऊं। Hmm. प्लस एट द एंड ऑफ द डे आई शुड बी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड कि Hmm. ठीक है, टाइम भी ज्यादा नहीं देना पड़ रहा है या उतना हौच पौच नहीं हो रहा है। Hmm. कि पहले जैसे कॉर्पोरेट में हम लोग काम करते हैं तो हम लोग हमेशा वो टारगेट एंड टाइमलाइंस के बेसिस पे ही काम करते हैं कि आज का ये डिलीवरेबल है तो करना है, खुद को खींच खींच के, खुद को मार मार के करो। और छोटे टाइम फ्रेम में जब आता है तो वैसा लगता है कि आपका अटेंशन, आपको बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा होता है, Much, और much लाइक more लाइक यू stressful. सेड कि डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट लेना पड़ता है। तो देन आई Hmm. थॉट कि नहीं, मेरा कंफर्ट क्या है, आई आस्क्ड माई Hmm. सेल्फ, सो माई Hmm. कंफर्ट इज कि आराम से शाम को बैठो, चार्ट्स Hmm. देखो, यू स्टार्ट एंजॉइंग द प्रोसेस, प्रोसेस को देखो कि अच्छा ठीक है, ये सेटअप बन रहा है, ऐसे बन रहा है, गिव टाइम टू स्टडी Hmm. द चार्ट्स। और वो छोटे टाइम फ्रेम में नहीं हो पा रहा था, नहीं होता इट है. वॉज वेरी डिफिकल्ट। Yes. I And will then take this. I started Yeah. doing, yeah. Yeah, in fact, I was saying that I will take this opportunity to just extend from what Aniket is sharing with us. ये मैं हमेशा सबके साथ ही शेयर करता हूँ कि I've noticed this urge, haste, impulsiveness to trade lower time frames, जिससे कि सौदा भी ज़्यादा मिलेगा, and ज़्यादा सौदा मतलब ज़्यादा कमाने का possibility. But the reality is actually opposite. लोअर टाइम फ्रेम्स बिल्कुल आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट. लोअर टाइम फ्रेम से ट्रेड करने से आपको नंबर ऑफ ट्रेड्स भी ज़्यादा मिलता है, दैट इज़ ऑफ कोर्स, बट दैट डज नॉट नेसेसरली मीन यू विल लैंड अप मेकिंग लॉट ऑफ मनी. वॉट इज़ necessarily true is the fact of more stress. You kind of burn yourself out. और जितना छोटा टाइम फ्रेम उतना बर्न आउट. That's why I always has been, of the opinion that you should at least, the bare minimum is the daily. मतलब डेली के ऊपर ही ट्रेड कीजिए, डेली और डेली के ऊपर. डेली के नीचे फॉर रिस्क मैनेजमेंट जल्दी एग्जिट करने के लिए 125-75 ठीक है, बट इट बिकम्स डिफिकल्ट. सो आई एम ग्लैड दैट you've taken that क्योंकि that step. मैंने ये चीज एक्सपीरियंस किया, क्योंकि जैसे ही मेरा खत्म हुआ, रेस्ट्रिक्शंस हटा, देन आई स्टार्टेड डूइंग एवरीथिंग इन एवरी टाइम फ्रेम। क्योंकि तभी वो कॉर्पोरेट माइंडसेट ये था कि हमें ज्यादा करना है, हमें ज्यादा करना है, वी हैव टू अचीव मोर, वी हैव टू डू मोर। वो माइंडसेट था। तो वो माइंडसेट से जब मैं एक्चुअल ट्रेडिंग करने आया, पेपर ट्रेडिंग से लाइव ट्रेडिंग करने आया, तो तब मैं सारे टाइम फ्रेम्स देखने लगा, सब कुछ देखने लगा। वो 3-4 महीना तो इट वाज हॉरिबल, इट वाज टेरिबल फॉर मी, इतना स्ट्रेस होता था। एंड देन द एंड ऑफ द डे, जब मैंने दिसंबर या स्टार्ट ऑफ जनवरी, मैंने अपना सारा जर्नल्स निकाला और मैं बोला कि मैं कर क्या रहा हूँ, व्हाट एम आई डूइंग, लेट मी जस्ट रिफ्लेक्ट ऑन माय एंटायर जर्नी ऑफ लास्ट 4-5 मंथ्स। Right. इज एनीथिंग दैट आई एम डूइंग इज मेकिंग सेंस? Hmm. देन फिर वहां पे क्लियरली वो दिखने लगा, दैट वो डेटा एनोमली मुझे दिखने लगा कि मैं कोई भी टाइम फ्रेम फॉलो कर रहा हूँ, कोई भी सेटअप में ट्रेड कर रहा हूँ। तो देन आई स्टॉप्ड माई सेल्फ एंड देन वी हैड दिस कन्वर्सेशन एंड देन यस, आई यस. जस्ट इनफैक्ट वेंट आपने ahead with one मेंशन भी setup किया and था one time frame. दिसंबर दिसंबर 2025 के टाइम पे यू हैड डिसाइडेड दैट एक ही सेटअप ट्रेड करना चाहिए, एंड यू डिसाइडेड ऑन LFDF, right, on the Yes. long side for the cash market. On uske baad, when you shifted to futures, then you can do both the long side as well. So for our viewers, probably they will not understand LFDF. LFDF is a pullback strategy that I developed few years back, but kind of renamed it,
बहुत साल पहले मैं उसको गोल्ड डिगर बुलाया करता था. आई हैव दिस हैबिट ऑफ नेमिंग ऑल माई स्ट्रैटेजीज एंड सेटअप्स. और फिर हमारे बहुत ही प्रिय लेट मिस्टर झुंझुनवाला, राकेश झुंझुनवाला जी गुजर जाने के बाद, आई डोंट नो, इट वाज जस्ट अ थॉट. आई ऑलवेज लव्ड लिसनिंग टू हिज स्पीचेस, इंटरव्यूज. दो ही वॉज अ बिग बुल, बट नेवरदीलेस लेट्स नॉट गो देयर. तो वो हमेशा जब भी उनको पूछा जाता था कि ट्रेडिंग के बारे में कुछ बताइए एंड ऑल, ही ऑलवेज यूज्ड टू से, ट्रेडिंग क्या है, ले फटाफट दे फटाफट. सो आई काइंड ऑफ हर्ड इट सो मेनी टाइम्स एंड आई लव द वे ही यूज्ड टू से इट. तो मुझे लगा टू डेडिकेट समथिंग फॉर अ पर्सनैलिटी लाइक हिम. तो फिर मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाया जिसका नाम रखा हम लोग ने LFDF, जिसका मतलब है ले फटाफट दे फटाफट. एंड आई थिंक अनिकेत आप LFDF ही मेनली ट्रेड कर रहे हो ऑन द. LFDF के दो वर्जन है, 2D 3D. यू स्टार्टेड विद 3D एंड नाउ आई थिंक यू आर ट्रेडिंग मोर ऑफ द 2D मोर ऑफ अ 2D, यस. विद द अभी गोल्डन धीरे वन. धीरे दूसरे दूसरे या सो अभी धीरे धीरे दूसरे सेटअप्स भी देखने लगा हूँ, बट जो भी सेटअप है वो हमेशा वो मोमेंटम के साथ ही रहता है. सो द हायर टाइम फ्रेम इज द बेसिक स्ट्रक्चर फॉर मी. हायर टाइम फ्रेम जो बोलेगा मैं वही करूंगा. हाँ, वो पुल बैक के लेवल्स थोड़ा डिफरेंट हो सकते हैं. लाइक राइट लाइक राइट वी हैव राइट. नेम्ड शैलो थंडर पुल फॉर बैक हो डिफरेंट सकता है, डीप पुल बैक हो सकता यस, है, we understand. यस, अच्छा, यस, इफ यस. आई से दैट आपका जो वर्किंग डेज के दरमियान जो आपका एक्सपोजर था, यू ऑलवेज कीप ऑन एम्फसाइजिंग ऑन द फैक्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क अवर्स, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क फर्स्ट, टेक केयर ऑफ द डाउन साइड्स फर्स्ट. ये जो आपका बैकग्राउंड था, ये जो आपका एग्जिस्टिंग माइंडसेट बन चुका है, डू यू सी दिस एज योर स्ट्रेंथ? यस, आई डू. क्योंकि आप जितना भी पैसा कमा लो, अगर आप वो पैसा रख नहीं पाओगे, अगर आप अपने कैपिटल को सही से प्रिजर्व नहीं कर पाओगे, देन देर इज नो पॉइंट. आपने जितना टाइम डाला, इट्स ऑल अ वेस्टेज, राइट? ट्रू. सो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इट्स एवरीथिंग इज मेथोडिकल, राइट? कि हम लोग का एक सेटअप है, वी डू द एनालिसिस एंड वी जस्ट फॉलो द प्रोसेस. एट द एंड ऑफ द डे, आई आई थिंक वी ऑल आर रिस्क मैनेजर्स. हम लोग यहाँ पे बैठे हैं वो पोजीशन का रिस्क मैनेज करने के लिए. अगर जो हमारा बेसिक चीज है, वो बेसिक चीज हम लोग अगर सही से नहीं कर पाते हैं, तो देन आई थिंक इट्स True, वेरी डिफिकल्ट. true, very true. Because in these lines, very few people actually think, especially at the beginning of their journey, because it's more to do with returns. I think it's everything to do with returns. आज के तारीख में भी अगर कोई म्यूचुअल फंड में SIP करेगा, वो पहले ही देखेगा टॉप 3 परफॉर्मिंग फंड्स कौन सा है, एज इफ नेक्स्ट 3 साल में वही टॉप रहने वाला है. वो होता नहीं है. So it's the natural tendency of looking and going towards more returns. Then you start to trade, and then one realize trading is addictive. Then returns आए या ना आए, या trading होना चाहिए, right? But yeah, I think what you shared with us is our golden words, that risk management. What we are doing is nothing but managing the risk. ये समझना, I think जो समझ पाएगा, he will probably will be no haste to trade. अगर कल ट्रेड नहीं मिलता है तो नहीं मिलता है, जब मिलेगा, जब सेटअप मीट होगा तभी ट्रेड करेंगे, और जब ट्रेड रहेगा तब रिस्क मैनेज करेंगे. So it makes boring, it makes trading, the activity, boring. But I think that is where the reality lies. That's where the profits and the returns lies. Great. I mean, if you don't survival first, then fight next. Exactly. आज अगर आप सर्वाइव ही नहीं करोगे, तो अगर कैपिटल ही वाइप आउट हो गया, तो कल आप ट्रेड कैसे कल क्या करोगे? करोगे? So essentially process over excitement, because trading is exciting for That's many right. people, for most, but process is boring. Yes, yes, So it's a yes, process over excitement. अच्छा, yes. गोवा का एक एंगल है. आई एट द बिगिनिंग ऑफ टुडेज इंटरेक्शन विथ यू, मैंने सबके साथ ये शेयर किया था दैट यू आर टेकिंग अ बिग डिसीजन, अ बिग स्टेप, अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग स्टेप इन योर लाइफ. आपने हमारे साथ ये भी शेयर किया था दैट बोथ यू एंड योर वाइफ, बोथ ऑफ यू लव नेचर. Nature is a wonderful reset button. I look at nature that way. Whenever I have also grown up in a city, I also live in a city, but even if you go to a nice park, city के अंदर भी, if you go in a nice green, यहाँ पे बहुत पुराने पेड़ है. I love old trees. I personally, मैसूर में मुझे दिखा था लास्ट ईयर जब मैं मैसूर गया था, बहुत पुराने, देख के ही लगता है that these must have seen wars. So
I feel that coming close to a nature, it can be a mountain, it can be a beach, it can be a lake, it can be a river, it can be a forest. It's a beautiful reset button. और आप आपके लाइफ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टेप लेने वाले हो. दिस वीक यू आर शिफ्टिंग फ्रॉम मुंबई टू गोवा. ये आपने Yeah. हमारे साथ मेरे साथ शेयर किया है. थोड़ा सा बताइए फॉर आवर ऑडियंस, फॉर आवर नेक्स्ट कम्युनिटी members, fellow members जो आपको सुनेंगे, they will also, I'm sure they will be excited. I request all of them to wish you best of luck. एंड जब भी वो गोवा जाए घूमने के लिए तो बिल्कुल आपसे तो बिल्कुल मिले. तो ये थोड़ा आप बताइए दिस स्टेप दैट यूर टेकिंग टुगेदर विथ योर वाइफ एंड यूर शिफ्टिंग ऑन द 3rd or 4th of July, right? Yes, next week, early next week. It initially we thought of this Saturday, but it got postponed by 2 more days, so early next week. So, me and my wife, we both are really, we like to travel, and we really like to stay connected to the nature. So, और मुंबई में इतने सालों से भाग भाग के we always wanted that slow life. We always wanted to experience that slow life. So basically, in Goa there is a concept called Susegad. So which is a representation of slow life. कि आराम से उठो, आराम से सब कुछ करो, टेक योर ओन टाइम, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो, सब चीजों के लिए थोड़ा वो, जब आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड करते हो, व्हेन यू रियली स्लो डाउन, तो कोई भी चीज का एक्सपीरियंस वो थोड़ा ज्यादा इमर्सिव हो जाता है. 100%. राइट. तो इनिशियली वी बोथ थॉट कि कहाँ पे जा सकते हैं, बिकॉज वी बोथ आर रियली माउंटेन पीपल, वी लव टू बी नियर टू द माउंटेन्स, लेकिन Okay. लॉजिस्टिकली गोवा मेड मोर सेंस, प्लस माई लव फॉर मुंबई विल ऑलवेज स्टे, सो आई ऑलवेज थॉट कि लेट्स स्टे क्लोजर टू मुंबई, क्योंकि 14-15 साल के बाद सडनली मुंबई से आप दूर चले जाओगे तो वो थोड़ा एक Yes, period yes. होना चाहिए. And बिल्कुल. Goa was the perfect fit because we thought of nature, we thought of slow living, Great. and yeah, Goa has a different side to the party side as well. So people who really don't know, so there are enough party opportunities, but Goa has a different side also. यस यस. So गोवा, yeah, वो जो डिफरेंट साइड के बारे में आप बता रहे हो वही गोवा का साइड था. पार्टी तो बाद में आया है और true. उस पार्टी के कारण क्राउड और झंझट भी है. बट जिस Yeah, साइड का गोवा का आप बात कर रहे हो, द ब्यूटी, द नेचर, द बीच, द पीपल, द स्लो लाइफ, वो तो हमेशा ही था और हमेशा रहेगा ही. You just have to look out for it. But I'm very excited for you. All my so much. best wishes always. वो irrespective of you continue to be the part of Next or not, that is your decision. But I think your journey, it's a journey. But this step of yours, जो हमें सुन रहे हैं, and any trader would love to trade out of a close to a beach or a mountain or anywhere, right? So this will definitely give others the motivation that if Aniket can, then why not me? I just have to decide the process, and process should be greater than excitement. So make trading investment decisions as methodical as a process. And ये excitement के लिए नहीं कर रहे. These are just numbers. And capital preservation and risk management, these are the core things. ये मैं और आप नहीं बोल रहे, everyone will say the same thing. Aniket, before I let you go, one final question. That is, you are in your late 30s, or Yes, have you entered 40s? late No, 30s. No, late not 30s. yet. 36, 37, I believe. Yeah, Okay, a little so more than that. a Close little to more than 40. that. Okay, so for any aspiring trader, सोचिए आप ही के शहर में, जो अभी आप छोड़ने वाले हो 4-5 दिन में, हमारे शहर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं. Those who are in the rat race, they will continue, but they also invest, trade, and they probably will look up to you and probably process their life so that they can also spend few years in that slow life of in Goa or anywhere else. Aspiring traders, those who are your age or younger to you, in their 20s, late 20s, early 30s, few basic, rules, commandments. I know you have shared few of them, but अगर orderly में, order manner में अगर आप share करें उनके साथ, what will those commandments be?
first thing would be find a mentor. There is like you always say, there is no right or wrong. Find a mentor with whom you can resonate well, जिसके साथ आपको वो इंस्टेंट कनेक्ट फील हो और आपको लगे कि हाँ मैं सीख सीख सकता हूँ इनसे कुछ. So that is my first thing that has worked for me so far. And the next one would be pick one setup and master it. So basically depth beats breadth every time. जितना आप अंदर जाओगे उतना आपको क्लैरिटी आएगा, उतना कॉन्फिडेंस आएगा. एक सेटअप को ट्रेड करने के बाद वो जो कॉन्फिडेंस आता है, 30-40 ट्रेड्स के बाद जो कॉन्फिडेंस आता है, वो अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस रहता है. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. पिक वन सेटअप एंड मास्टर इट. देन द नेक्स्ट वन वुड बी जर्नल एवरीथिंग. आप जो एक एक ट्रेड ले रहे हो, कीप अ जर्नल and actually review it. For the sake of keeping a journal, don't journal it. Actually review it. Sit down with your trades and go into that reflecting journey. देखो एक एक ट्रेड. सो बेसिकली व्हाट हैपेंस कि जब आपने वो ट्रेड लिया, आप भूल जाते हो कि क्यों लिया. राइट डाउन कि क्यों लिया, एंट्री क्यों किया था, एग्जिट क्यों किया था. सो आई इन माय जर्नी दैट हेल्प मी अ लॉट, जहाँ पे मैं एग्जैक्टली एक एक पॉइंट्स लिखता था कि मैंने क्यों लिया, मैंने क्यों एग्जिट किया. तो आगे चल के जब मैं रिव्यू करता था तो मुझे वो क्लियर पैटर्न दिखता था कि LFDF में भी कौन सा वर्क कर रहा है, कौन सा वर्क नहीं कर रहा है. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. And the next important thing is कि you have to really detach from the individual outcomes. Enjoy the process, control the process, because you can only control the process, not the outcome. So you have to detach from the individual outcome and then just focus on the process and enjoy the process. Right. Learn from your mistakes, enjoy the process. That's more important. Wonderful. I completely agree with all the pointers of yours, but somehow not the first one, because एकलव्य भी था जिनके पास मेंटर नहीं थे, बट स्टिल ही वॉज एन एक्सेलेंट आर्चर. खुद को बनाया था. एंड अर्जुन के पास भी मेंटर था, and he was also an equally successful archer, one of the greatest. That mentor side of yours, that mentor point of yours is, I think, I feel so, is a byproduct of the journey. For example, if someone is planning to learn about markets or anything, and उसमें अगर उतना भूख है, प्यास है, that I want to really, he or she will put in the time and effort, read books. I can just recall my days back in 2004-5. Amazon भी तब नहीं था, and so जहाँ से भी कुछ भी मिलता था, we just used to read. But times are different now. I'm not complaining. But what I'm trying to say is you did not go out looking for a person. I feel you will stumble upon them, or they will come in front of you when the right time comes. And this has got nothing, this is not about trading and investing only. This can be in any areas of your life. For example, you mentioned about the lady who you consider to be your mentor. So people will come into your life and they will open doors for you. Few people will come and close doors for you. So what I'm trying to say is you don't go out looking for those people or those keys. Come to you. If you have your decided path with full intention, you walk in that particular path. आप मिलोगे, you will meet people. ऐसा हो भी सकता है कि आप you never met anyone whom you can call your mentor. हो भी सकता है. You are one of those who kind of build your own path, which is completely okay. You are your own mentor. A mirror can be your own mentor, right? So yeah, I think. But the whole thing is कि mentor makes your journey a little easier. आपका वो learning curve shorten हो जाता है. Yes, people जैसे like you pointed out कि जिसको वो सीखने का चाह होगा वो कैसे भी करके सीख जाएगा. दैट इंटेंशन इज व्हाट मैटर्स. पर वो इंटेंशन के साथ इफ यू फाइंड राइट पीपल, राइट रिसोर्स आई मीन राइट कम्युनिटी, क्योंकि ट्रेडिंग इटसेल्फ इज अ लोनर्स गेम. अगर आप एक कम्युनिटी में रहोगे, एक मेंटर के साथ रहोगे, सो साइकोलॉजिकली इट हेल्प्स अ लॉट. Yes, I was coming from that point. you're right. You're right. आप कहीं पे तीर्थ यात्रा पे अगर जा रहे हो,
there is a way which will, you have to walk 17 kilometers and it will take you half of the day or the entire day, and it is very stressful and you'll be very tired. But finally, you will reach the shrine, you will reach the place. And recently, the helicopters have started, and recently, the ropeways have also started, जो आपका जर्नी 15 मिनट में 18 मिनट में हो जाएगा. बट ऑफ कोर्स आपको उसमें ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा. एंड शॉर्ट एंड स्वीट, एंड तो सीधा आपको वहाँ पहुँचा देगा. Hmm. दोनों का अलग मज़ा है. Hmm. सो बोथ ऑफ देम आर चॉइसेस. ऑफ कोर्स अगर सबके पास हेलीकॉप्टर वाला चॉइस होगा, देन एवरीवन विल गो फॉर द हेलीकॉप्टर, जो आप गुरु का बात कर रहे हो, विच इज़ ओके. Hmm. बट वो जो जर्नी है, फ्यू पीपल फाइंड चेरिश द जर्नीज ऑल्सो विच आर स्ट्रेसफुल और विच आर डिफिकल्ट एंड विच आर लॉन्ग. I somehow like it. I somehow always like to learn things slightly hard way than the easy way. Probably that's how I am or who I am. But I completely understand your point. My point is, don't look out for a guru. You look out for yourself. Prepare yourself. Build yourself. And अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान आने को है जो आपको गाइड करेगा और बेटर तरीके से, फिर वो आ ही जाएगा. You don't have to try too hard for it. That's my thought process. That's it. क्योंकि मैंने बहुत अच्छी चीज कहीं पे सुना था, what you are seeking for is seeking you. Maybe. Maybe. मार्केट में लागू नहीं होता है, because everyone seeks profits. I know. Nevertheless, Aniket, thanks a lot for sharing your journey, your thought process. Short and simple, sweet. Process is over excitement. Risk management is what you are. You're not a trader actually. You are a risk manager. That's a brilliant point we should remember. Trader is a fancy word. किसी को भी बोलेंगे, he will feel 4, 5, 6 screens. बहुत मज़ा आ रहा है, Lamborghini चला रहा हूँ and वो सब. They're all shosha. They are probably light years away from the fact and the reality of what real thought process, the process driven methodical trading investment should be. And last but not the least, all the best for your new chapter in life. When I come down to Goa, I'll definitely Sure. spend one evening and have a nice dinner with you. Enjoy the slow life. I am enjoying my slow life for many years now, though in a city, but I really cherish my slow life, and I'm looking forward that you will also, with your wife, both of you will enjoy Goa as much as always. Every one of us do. Thanks a lot, Thank you. Aniket. Thank you so much, sir. Thank you for this opportunity, and thank you so much. It was really nice talking to you. Thank you so much. Great. Thank you.